کے لیے خطرناک ہے, مخالفین کے لیے نہیں. اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے. معیشت کی بری حالت تھی کہ معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے, چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. 70 وزراء آپ نے بنا دی, حالت ملک کی ہے, وہ کس لیے بنے, سب کو راضی کر رہے ہیں؟ پتہ کر کے بتاؤں گا. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. نیوز کام ہو نہ ہو, اقتدار کی جھولے جھولنے کا مزہ ضرور آنا چاہیے. موجودہ مخلوط حکومت کی اگر بات کی جائے تو ان کی کارکردگی بھی کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے. عوام پر روز مہنگائی کا بوجھ لادنے والی سرکار کی جہاز سائز کی وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے. 8 نئے معاونین خصوصی کی شمولیت کے بعد وفاقی کابینہ 70 اراکین کی ہو گئی ہے. شاید تجربہ کار سرکار عوام پر بوجھ ڈالنا ہے, عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے یہ تمام جتن کر رہی ہے, مگر پھر بھی ناخلف ڈالر ہے کہ نیچے آنے کو تیار ہی نہیں. نون لیگ صبح شام عوام کو یہ باور کروا رہی ہے کہ اپنی سیاسی قبر کھود کر انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں. مزید دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ جو قیمت ہے یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے دی گئی ہے. معذرت کے ساتھ سیاسی بیانی کے لیے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن حقیقت میں کیا حکمران اتحاد کے عمل سے ایسا کہیں سے لگتا ہے کہ انہیں سخت فیصلوں کا عوام پر بوجھ ڈالتے ہوئے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ورنہ یوں اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے نہ بانٹے جا رہے ہوتے. ملک بھر میں سیلاب کی تباہی کا اس وقت اگر تخمینہ روز بروز لگایا جائے تو وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور یہاں حکمرانوں کے اخراجات کم ہی ہونے کو نہیں آ رہے. دنیا سے امداد مانگنے کے لیے بھی لمبے چوڑے وفود جاتے ہیں. کیا ایسی ہوگی IMF سے نجات؟ کیا 25 کلومیٹر پر حکمران وفاق حکومت کی کابینہ کا اتنا سائز بنتا ہے؟ دوسری جانب سیاسی غیر یقینی کا یہ عالم ہے کہ عمران خان مسلسل حکومت کو گرانے کے لیے کوشاں ہیں, اور اس ضمن میں ایک بار پھر پس پردہ پیغام رسانی کی جو افواہیں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں. صدر عارف الوی نے بھی گزشتہ دنوں سیاسی جماعتوں میں پس پردہ بات چیت کا کچھ اشارہ دیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر مریم نواز غصے میں نظر آ رہی ہیں اور اپنی حکومت کی فیصلہ سازی پر تنقید کر رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے معاملے پر حکومت, عدالت اور اداروں پر دباؤ بنانے کے لیے بیانات داغ رہی ہیں. لیکن مریم کا پاسپورٹ واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنا بھی بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے, جس کے ساتھ ان کے بیرون ملک روانگی کو جوڑا جا رہا ہے. اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں, عالیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں, اور کچھ ہی دیر میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. اچھا, اب اس وقت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے کابینہ کا سائز آپ کو بتا دیا کہ 70 پر اس وقت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اور جو اس میں اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر جو ہیں 25 ہیں, جن میں سے کہا جا رہا ہے 22 کا ابھی تک کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے, پورٹ فولیو اناؤنس ہی نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ سے جب اس پہ پوچھا گیا تو پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیجیے انہوں نے کیا کہا. 70 وزراء آپ نے بنا دی, حالت ملک کی ہے, پلیز یہ تھوڑا سا بتائیں, وہ کس لیے بنے, سب کو راضی کر رہے ہیں؟ پتہ کر کے بتاؤں گی. حبیب اکرم صاحب, بڑا انٹرسٹنگ جواب تھا جی, پتہ کر کے بتاؤں گی. جب آ رہے تھے تو اس وقت کہا تھا جی ہم سیاست نہیں, ہم ریاست بچانے آئے ہیں, لیکن روز بروز جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ سیاست ہی بچ رہی ہے, حکومت ہی بچ رہی ہے, کہیں حکومت نہ چلی جائے. اپنے اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے, بات ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ حکومت لے لی ہے تو پھر اب اس کو بچانا بھی ہے, اور بچانے کے لیے جو کاسٹ جو پارٹی طلب کرتی رہے گی وہ اس کو دیتے رہیں گے, اور PMLN ہی ظاہر ہے اس کولیشن کو لیڈ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ کاسٹ اسے ہی پے کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت سنبھالی ہے انہوں نے مسلسل PMLN کا گراف نیچے آ رہا ہے, ورنہ اگر جنوری 2022 کی ہم بات کریں تو جنوری 2022 میں آپ اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عمران خان مقبولیت کی اس سطح پہ ہوں گے اور PMLN جو ہے وہ اپنی مقبولیت کی نچلی ترین سطح پہ ہوگی, کہ اس کو بالکل ایک آپ یوں کہیے کہ بہت
बुनियादी तो नहीं, आप इन्हें कहना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन इनमें इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये मजहब कार्ड भी खेलने की कोशिश करेंगे। एक वफाकी वजीर बाकायदा तौर पर PTV के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जनाब देखिए फलां के मजहबी ख्यालात ये हैं, फलां के मजहबी ख्यालात ये हैं, और इस फिक्रे का मतलब जो है फलां फिका के नज़दीक ही है। अब आप तसव्वुर कर सकती हैं कि ये इनको कितनी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ रही है। और फिर खुद वजीर आज़म भी कह चुके हैं कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि ना इनसे रियासत बच रही है, रियासत जिसको ये मईशत, यानी ना इनसे मईशत बच रही है और ना इनसे अपनी सियासत बच रही है। और उसकी जौहरी और बुनियादी वजह मारिया ये है कि दुनिया भर में प्रैक्टिस ये है कि जब तहरीके अदम एतमाद पेश की जाती है या और वो मंजूर हो जाए तो उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, ना कि उसकी जगह एक मुतबादल हुकूमत वजूद में आ जाए। तो अब चूंकि इन्होंने घोड़ा जो है वो गाड़ी के पीछे बांध लिया है, तो अब इन्हें सब कुछ एक डिफरेंट अंदाज से देखना पड़ रहा है। और जाहिर है जो ना दलाइल की कसौटी पे पूरा उतरता है, ना मंतक के किसी पैमाने पे पूरा उतरता है। तो अब बहरहाल एक ज्यादा से ज्यादा जो फायदा वो ये हो सकता है कि जिस गाड़ी पर बैठ चुके हैं ये, और किस्तों की इस गाड़ी को मजीद, चूंकि किस्त देने के तो पैसे नहीं है, तो किस्तों की इस गाड़ी को मजीद 4-6 महीने 8 महीने इसको मजीद चला लिया जाए, मजीद मजे ले लिए जाए, दोस्तों को बिठा के सैर करा ली जाए। इसके सिवा तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि PDM की गवर्नमेंट जो है वो क्यों कायम है। अच्छा तो हबीब साहब, लेकिन फिर इसका मतलब वो बात तो वाजे हो गई ना जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था कि जी अगर ये हुकूमत रह जाती तो हम जेलों के पीछे होते। जो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि जी हम तो सियासत नहीं रियासत बचाने आए थे, असल में तो इट वाज बेसिकली अ डिसीजन कि या आप हुकूमत में रहें या फिर आप जेलों में जाएं। तो बेसिक तो वो नजर आ रहा है, बिकॉज जिस किस्म के, जिस तरह मैंने बयान अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि वफूद जिस लेवल के जा रहे हैं, बड़े बड़े वफूद, आपने देखा है कि हर जगह जो है वो वफूद का साइज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बड़े वफूद जा रहे हैं बैरून मुल्क, और लोग हमें देख कर हंसते होंगे कि एक तरफ IMF की जो है वो किस्त के लिए पीछे भाग रहे हैं, दूसरी तरफ वफूद का साइज जो है वो देखें, और फिर काबीना जिस तरह बढ़ती जा रही है। मतलब अनबिलीवेबल है कि 22 का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है अभी तक। डॉक्टर मारिया कुदरतुल्लाह शहाब ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी थी जब वो हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर थे। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी सफारत का तजुर्बा एक फिक्रे में उसको समो दिया ये कहकर कि जितने छोटे मुल्क का सफीर होता है उतनी बड़ी उसकी गाड़ी होती है। तो लिहाजा ये जो हमारे यहाँ हम कभी जहाज पे चढ़ के इतने लोग जो जा रहे हैं और दुनिया को अपनी शक्ल दिखा रहे हैं और साथ ये भी बता रहे हैं कि जनाब हम आपके पास मांगने नहीं आए बल्कि आखिरी दफा मदद कर दें हमारी, आप ये तसव्वुर कर लीजिए कि इसका मकसद क्या, इसका मतलब ये है कि जो PDM की जो इस वक्त हुक्मरान है उनको ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा ही नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका तासुर, मतलब उन्हें खल्के खुदा गायबाना क्या कह रही है, और उसके बाद जब ये ताम झाम दिखाते हैं तो इसके असरात क्या पड़ते हैं। तो ये तो हमेशा उन हुकूमतों में आता है जो हुकूमतें अवाम से डिस्कनेक्ट हो चुकी हो। तो वो जो डिस्कनेक्ट है वो हमें काफी वाजे नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में। वरना, और मेरे लिए ये हैरत की बात भी है डॉक्टर साहब, उसकी वजह यह है कि PMLN कोई बच्चों की जमात नहीं है, PTI जैसी कोई नई जमात नहीं है। इसको तो उसूलन हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ हुकूमत भी ले ली बल्कि चलानी भी शुरू कर दी। चले, मैं हिना साहिबा ने हमें ज्वाइन कर दिया। प्रोड्यूसर साहब, अगर क्योंकि हिना साहिबा अभी आई हैं, अगर दोबारा सुनवा दीजिए कि जब मरियम साहिबा से सवाल हुआ कि आपकी जो काबीना का साइज है वो बढ़ क्यों रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर मैं हिना साहिबा की तरफ चलती हूँ। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये थोड़ा सा बताओ वो किस लिए बने, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। हिना साहिबा, महंगाई की अगर बात की जाए तो 47 ईयर हाई पे जो है इस वक्त महंगाई इस वक्त मौजूद है। 47 ईयर्स में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस वक्त है। बार बार यही बात हो रही है कि जी 25 किलोमीटर की रेडियस में जो सरकार है उसको इतने ज्यादा ऐसे PMs क्यों चाहिए, और 25 में से तो 22 ऐसे हैं जिनको भी पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया। तो इसका मतलब सिर्फ इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए दिया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अवाम की जेब पे इस पे क्या असरात आएंगे, क्या टैक्स पेयर किस तरह जो है वो करेगा, सैलाब आया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कफायतशारी से डील की जाएं। आपका हुज्जम तो बढ़ता ही जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया, आपने मुझे वो दोबारा दिखाया, लेकिन मैं उधर मौजूद थी तो आई हर्ड हर स्टेटमेंट ऑल्सो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बात की कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट है और कोएलिशन गवर्नमेंट की डेफिनेटली मजबूरियाँ होती हैं, ये भी हम अग्री करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
थोड़ा सा अगर हम इसको ऑस्टेरिटी मेजर की आपने बात की तो हम बिल्कुल इस वक्त आवाम को, आपको पता है कि सैलाब आया हुआ है, 70% हमारी पॉपुलेशन सैलाब से मुतासर है, 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज और सैलाब से मुतासर है। बिल्कुल आई थिंक कि अगर हम अपनी काबीना को देखें, हमारी मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लें, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेजेस काबीना को मिलती हैं वो नहीं ले रहे। ट्रैवलिंग हो तो वो कहते हैं अपने आप को सेल्फ फाइनेंस करते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन ऑस्टेरिटी ड्राइव पे मैं जरूर एक बात क्वेश्चन मार्क आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, और आपकी ये आलिया साहिबा भी बैठी हैं। बिल्कुल जब इनकी हुकूमत 3-3.5 साल रही है तो इमरान खान साहब बिल्कुल ये कहते थे कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करेंगे, लेकिन हमने देखा कि अरबों रुपए का जो पैसा है वो हेलीकॉप्टर की, बनीगाला की ऑफ एंड ऑन जो राइड है उसमें खर्च किया गया। हमने देखा कि किस तरह उन्होंने बिल्कुल जो आप देख ले कि जो शुगर का क्राइसिस हुआ या आटा का क्राइसिस हुआ, जितनी चीज़ें आई उसमें पैसे इन्होंने बिल्कुल उसमें कमाए भी और कैसे ज़ाया किए। लेकिन बात ये अभी भी मैं यही कहती हूँ कि देखिए इस वक्त मुल्क में अगर फूड इनसिक्योरिटी है, और आपको पता है कि सैलाब की वजह से हमें इंपोर्ट्स जो है वो करनी पड़ रही हैं, और मुल्क में जो है वो फूड सिक्योरिटी की एक बेसिक प्रॉब्लम है। एंड द सेकंड थिंग इज़ लाइक इन कोरोना टाइम्स राइट नाउ बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स की वजह से मुल्क बिल्कुल सफ़र कर रहा है। तो हम इकट्ठे मिलके इस वक्त ज़रूर डिसीजंस ले सकते हैं। और मरियम बीबी ने ये आपको बिल्कुल बात ये की कि जिस पे कल एक बात कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रही थी कि PMLN एक पार्टी है और हुकूमत कोalition गवर्नमेंट है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, और मियाँ साहब ने भी बड़ी दफ़ा इस बात पे रेज की बात कि अगर महंगाई होएगी, अगर ऐसे बिजली के प्राइसेस ज़्यादा होंगी या पेट्रोल की प्राइसेस होंगी तो हम ज़रूर इस पे आवाज़ रेज करेंगे। और इवन नॉट ओनली दिस, आपने शहबाज शरीफ साहब को भी देखे, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मुझे इतने मुश्किल फैसले करने पड़े हैं। बल्कि ये क्यों करने पड़े हैं? क्योंकि इन द लास्ट 3.5 years इन्होंने जो हमें हुकूमत दी उसके बाद ये 100% ये चाह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह खुदा ना खास्ता एक उसमें चला जाए। और एक और चीज़, जिस तरह आपने देखा कि ऑडियो लीक्स हुई थी जिसमें जो शौकत तरीन साहब हैं वो कह रहे हैं कि IMF की डील ना होने दें। तो ये सब चीज़ें हमारे पास भी सामने हैं कि इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है कि सारी पार्टीज को इकट्ठे मिल के एक कोलैबोरेटेड एफर्ट करना चाहिए, सैलाब के लिए, फ्लड्स के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए भी, जो अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अभी तो आपको पता है सिर्फ उनको खाने पीने का और उनकी रिहाइश का और उनको सेव करने वाली चीज स्टार्ट हो रही है। तो आई थिंक कि इस वक्त इंतशार फैलाना या इस वक्त आके इमरान खान साहब को ये बातें करना कि इलेक्शंस होने चाहिए, काफी सारी आपने बातें कर दी, बट मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप जिस तरह बात कर रही हैं ऑस्टेरिटी की बात इन्होंने की थी, 2 wrongs don't make a right, स्पेशली इस वक्त जो हालात हैं इस पे तो मेरा ख्याल है कहना ये चाहिए था कि काबीना का साइज जो है वो कम हो रहा है। दूसरा आप कह रही हैं कोलैबोरेटेड एफर्ट होना चाहिए, तो आप ये कह रही हैं बेसिकली, और आप कह रही हैं कोलिशन गवर्नमेंट मुश्किल है, तो दैट मीन्स कि आपको कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो तंग कर रहे हैं इस वक्त और उनको इस चीज का इदराक नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छी बात तो ये होती है कि जी 25 आपने बना दिए, आप ये कह रही हैं फलां अपने खर्चे पे, फलां अपने खर्चे पे, वैसे तो बनने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अगेन 22 ऐसे हैं जिनको पोर्टफोलियो नहीं एलोकेट हुआ, वो करेंगे क्या ये नहीं पता, सिर्फ अवाम का जो है वह अवाम के पैसे पे वो आ रहे हैं, ये सिर्फ नजर आ रहा है इस वक्त। और मतलब बाकी चीजें अपनी जगह, वो गवर्नमेंट चली गई ना, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो आपकी है, तो अब मेरा ख्याल है अपनी बात की जाए बजाय इसके कि बार बार जो है इस पे पीछे जाए। बिल्कुल मारिया, आपकी दोनों बातों को मैं कहती हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। But then Hina, are you saying that your coalition partners do not have the sense कि political stability जरूरी है? वो इस वक्त कह रहे हैं हमारे लोग जो है वो accommodate What I'm saying is political, हाँ मेरी बात भी मारिया सुन ले, पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इमरान खान इज ट्राइंग कि वो इंतशार फैलाए, फितना करे और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे जो जानबूझ के मजहबी कार्ड भी काबीना का साइज ना
वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मजहबी कारतूस जावेद लतीफ ने जो यूज किया। दूसरी बात, स्टेट टेलीविजन पे कंप्लीट करने देना। दूसरी बात कि जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने वाले में जा रहा था और हमें पता था कि इनकी पूरी कोशिश थी कि श्रीलंका वाला हाल हो, तब हम लोगों ने एक कोलिशन गवर्नमेंट बना के हुकूमत में आए पाकिस्तान को एक रोड मैप देने के लिए। बिल्कुल इस टाइम पे फ्लड भी आ गया है, इस टाइम पे मैं बिल्कुल यहाँ बैठ के ये नहीं कह रही महंगाई नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि ऑस्टेरिटी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, मैं इसको वो नहीं कह रही, बट मैं कह रही हूँ कि एक हुकूमत की भी मजबूरी है। इनडायरेक्टली यू से कि कोलिशन पार्टनर्स उस बात का इदराक नहीं है, इनडायरेक्टली तो यही बात हुई ना। और आपको शहबाज शरीफ साहब का तो पता है, पीएमएलएन का तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा ऑस्टेरिटी ड्राइव कोई नहीं करता। चले मैं जरा आलिया साहिबा, हमारे जितने मिफ्ता इस्माइल साहब हो गया वो, चले आलिया साहिबा की तरफ चलती हूँ, ब्रेक पे भी थोड़ी देर में जाना है। आलिया साहिबा आप यकीनन मुस्कुरा रही हैं और जवाब भी देना चाहेंगी, तो मेरा सवाल तो बाद में आएगा, आप जवाब क्योंकि वहीं से शुरू करेंगी तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, असल में मसला यह है कि इनकी 70 काबीना का जिम्मेदार भी इमरान खान है। ये जो जो काम करते हैं ना, सबका जिम्मेदार इमरान खान है। अब मुझे समझ नहीं आती, कल को ये कह देंगे पीएमएलएन को इस हुकूमत में धकेलने वाला भी इमरान खान ही था। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बातें बता दूं, इस मुल्क में जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 1 अरब 10 करोड़ जो है ना, ये यौम आज़ादी के नाच गाने पर लगा देते हैं। इस मुल्क में जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 75 करोड़ के ये एड्स दे देते हैं टीवी चैनल्स को। इस मुल्क में जहर खाने के पैसे नहीं। देखें प्लीज डॉक्टर साहिबा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात में ये इंटरप्ट नहीं करेंगी जी। इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन जो इनके स्पीकर साहब है वो $16 लाख कनाडा जाकर खर्च कराते हैं और लेकर आते हैं $15,000, लेकिन अवाम जो है वो चाय के अंदर चीनी नहीं डाल सकती। यहाँ पर अभी वो आज खत्म हुआ है SDGs का इजलास, $500 बिलियन इन्होंने उसमें लगा दिए। और कौन से कंट्रीज आए? 37 मेंबर्स कंट्रीज थे, 37 कंट्रीज के अंदर 7 ममालिक आए, वो भी आए जो पाकिस्तान को सैलाब के लिए किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकते। अब आपने जो इतनी लंबी चौड़ी बात की, इन्होंने कहा जी शुगर स्कैंडल आ गया। 25 लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियोज नहीं है। 25 लोगों को जो रखा गया है ना, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रखा गया इमरान खान के अगेंस्ट, किसी को मजहब कार्ड लगाने के लिए रखा गया इमरान खान के अगेंस्ट, किसी को आकर इनकी तरह टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान फोबिया करने के लिए रखा गया। असल में अगर इनकी सारी की सारी डॉक्टर साहिबा मैं कोई रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अगर हम प्रोग्राम अच्छी तरह करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर ये इंटरप्ट करेंगे मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। आई विल नॉट टॉलरेट दिस एटीट्यूड एनी मोर। इनकी कारकर्दगी जरा मैं ये बता दूं, ये कह रहे हैं ना कि सैलाब आया हुआ है, मिलकर बैठना चाहिए। जी बिल्कुल मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बनी गाला के सर्च वारंट इशू करेंगे, यहाँ पर ये हमारे वर्कर्स के ऊपर, सहाफियों के ऊपर तशद्दुद करेंगे, ये पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन सब कुछ हो सकता है, इमरान खान को सैलाब में सियासत नहीं करनी चाहिए। अब इनकी कारकर्दगी जरा, तो 4 लाइनों के अंदर इनकी कारकर्दगी का जवाब जो है, जब से आए हैं 55 रुपए का डॉलर महंगा हो गया, आज 245 का भी डॉलर मिल नहीं रहा। महंगाई जो है वो 47% को क्रॉस कर गई है। कर्जे ये इनके सिर्फ कर्जों की अगर आप सुन ले, कर्जे इनके जो, अच्छा आली साहिबा मुझे जो हुकूमत रोजाना कर्जे ले रही है ना, वो 88। जी आली साहब एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर इजाजत दें एक ब्रेक लेती हूँ, आपके पास ही आऊंगी, यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। विल बी राइट बैक।